The Society for Culture and Environment extends a warm welcome. You are watching a session, An Undocumented Wonder, the Great Indian Election. S.Y. Qureshi in conversation with R. Parsuram from the Bhopal Literature and Art Festival, January 2019. Shri S.Y. Qureshi is an Indian civil servant who served as the 17th Chief Election Commissioner of India. He has also served as a secretary in the Ministry of Youth Affairs and Sports. Shri R. Parsuram is a 1978 batch retired IAS officer. He was the Chief Secretary of Madhya Pradesh and was also appointed as the State Election Commissioner. Currently, he is an independent professional working as a public policy and rural development consultant. Firstly, I'm against autobiography, at least for myself, because in autobiography, either you exaggerate your achievements, after all, we are human. And I've also seen the contrast on Mr. Bhaskar Ghosh's book on Doordarshan Days, my Doordarshan Days. He is a gentleman, so he was very self-effacing. Throughout the book, he is only talking of his failures and frustrations. Now, that also is not the kind of book that you want to read. Therefore, since you cannot really be honest, I have not in 450 words, the first person singular pronoun I is never used. It's always we the team. And I have acknowledged all the officers. It is a very kind of anecdotal. It's half of the book is anecdotes and the story. And no controversies, no sensationalism. Although, if I were to tell you even a sample, the kind of sensational stories we have, which I resisted the temptation of using, because the shelf life of such a thing is very, very small. So I desisted from that, and this book has been doing very well. That is why it has gone into the fifth print. Now it has come as a paperback, and it is an expanded and revised edition. As Parsuram said, the last 5 years developments are now included in as a chapter. And a little bit about 2-3 minutes that India, have often heard that India is one of the largest democracies, which is the biggest understatement. You can't be larger than what we are. We're the biggest by miles. The second largest election is USA, which is 1/4 of India. And we have more voters than all 50 countries of Europe put together, or 54 countries of Africa, or 2 continents of America, the whole continent, the entire Commonwealth. In fact, we have 90 countries rolled into one. And we have problems of those 90 countries, all in India, some form or the other, and we deal with them normally. To conduct such a large operation, which is not only the biggest election in the world, that's the biggest management event of any kind in the world, that is India's election, and which is why we all feel very, very proud. And in fact, I was just talking to Raghav's brother, who is a diplomat. I think the most respectable brand of India is India's election. I think all diplomats around the world very proudly talk about it, India's election. And while we have such a large magnitude, 834 million voters were enrolled in the last election, we have a regard for the single voter, which is why we have a booth for a single voter in Gujarat, in Gir forest of Gujarat, which is famous for Asiatic lion. There is a temple priest who lives there. For him, we set up a polling station where 6 people go a previous evening to set up the polling station, because that is the standard configuration. Then we wait for him to come the next day, or whatever time he chooses. Last time he came around 2 o'clock. And then even after he has come and voted, we do not pack up and go. You know why? Because technically, legally, somebody may come and challenge his vote that was a bogus voter, I'm the real voter. So we have to wait till 5 o'clock for the possible dispute so that we resolve it, and only at 5 o'clock we pack up. Now this emphasis on one vote is not just for effect. It's a reality. There are many votes, 1, 2, 3 or 5 voters. In my time in Rajasthan, there was an election, state election, where Congress president was Mr. C.P. Joshi. He lost by 1 vote.
And when he was losing, he rang up the returning officer requesting him to recount the postal ballots. Postal ballots were about 500 plus, so he says, all right sir, 15-20 minutes, same result. Then he rang up a second time, he said, can you retabulate the totals from the machine? He said, all right, another 15-20 minutes, same result. So he called up to thank the returning officer and went away. The interesting thing there was that he had lost by one vote and his wife had not voted. I read about it somewhere and I called up Mr. Joshi. I said, yes, Sunai, is that correct? He said, yes, that day his wife and daughter had gone to a temple which was a little far away. And for us, there are 3 lessons here. 1, every vote counts. 2, you can't take even your family for granted. 3, on the day of poll, the most important temple is the polling station. That's something which politicians have realized and which is what we need to understand. The power of one vote is again and again in our electoral system, which is why, as I said, 99% good election is no good election. It has to be 100%, because one mistake in one booth which leads to a repoll creates problems. It can even alter the result. And all of us should shed our apathy that हमारे वोट से क्या फर्क पड़ता है. Maybe your vote is the deciding factor. Please remember that that's a festival you should not miss. I'll finish on this, that lack of voter turnout in many places in urban areas, the urban apathy is talked about, which leads to a very dangerous suggestion that we should have compulsory voting. We are totally against it because compulsion and democracy don't go together. Secondly, how will we enforce it? 300 million people did not vote last time. Now, if we make it compulsory and if you do not vote, you will be punished. And even that punishment is a token fine of 1 rupee. We are a civilized country, we have to follow due process of law, which means we start with a legal notice to you, you have not voted, why should we not proceed against you? And that is the beginning of a court case. Now 30 crore court cases after every election हम आपको दे देंगे, gift करेंगे. जबकि we are struggling with 3 crore pendency in the court and we are all concerned and we don't know how to solve it. Now therefore that is not the answer. People say that Australia has, Singapore has, we should learn from them. Do you know we added 4 Australias between 2009 and 2015. Australia is the size of Haryana. And Singapore is the size of Karol Bagh. So we learn from Singapore. Our proportions, our problems are totally different, and therefore the answer is voter education. And Parsuram will bear me out because he has been in the election process. We decided to take it head on through voter education. We set up a voter education. There was a lot of opposition to the idea of voter education. I am in communication, when my PhD is in communication. When I saw, when I was the junior most member of the commission, that we should do voter education, so the senior most guy said, "Apne time mein karna." That was also my time. I was a full-fledged, equally voting member. So, but I waited for my time 4 years. I set up a voter education division. Bihar election 2000, highest election in history. More women voted than men. And every election in the country after that has given us historic turnouts, no turning back. Bihar se. I talked to my Australian counterpart. Okay, look, everybody in India talks of Australia. How was your experience? He says, very bad. So why is there we have a fine of $20, and to collect the fine of $20, we end up spending $2,000. And 2-3 years of correspondence. I said, after all that, what is your turnout? Then it must be 100%. He said, no, it is 90%. And believe me, when I was talking to him at that time, just 3 weeks before that, in Tripura, we had achieved a voter turnout of 93.6%. PRC, 93.6%. Why do we need a tanda? So that is a very wrong, bad proposal. Now all these questions, issues, and the questions you are going to ask, they are here, and the questions you will not be asking, they are all answered there.
Therefore, at the end of the day, please do buy this book. These mics are perpetually and you are talking of zero tolerance in elections, and that's a credo with all election authorities. लेकिन इन माइक्स का हम कुछ नहीं कर पा रहे, ये हमेशा थोड़ा धोखा ही देते हैं. ये आप why I've started speaking in Hindi is कल मैंने यहाँ कुछ सेशंस अटेंड किए और कुरैशी साहब से आज सुबह बातचीत का मौका भी मिला. तो बहुत से लोग कल अंग्रेजी में मुझे लगा कि वो सहजता नहीं आ रही थी उनको. तो यहाँ पर कुरैशी साहब क्योंकि दोनों भाषाओं पर समान अधिकार रखते हैं, तो अगर कोई हिंदी में भी कुछ आगे पूछना चाहेंगे तो उनका स्वागत होगा. लेकिन सर your book is so rich in anecdotes, and you reiterated some of these, including the one relating to Mr. C.P. Joshi, whom incidentally I also happen to know very well. But then apart from the lighter side of it, elections are very serious business. In fact, I can't restrain myself from not narrating one small anecdote. And that is how did I get initiated into the electoral process? I got posted to Bastar as assistant collector. And that was so I came from, after my training in 1979. And that was the 79 end, beginning of January, Mrs. Indira Gandhi's famous comeback in the election that she won. So my collector said, you have to get involved in the electoral process and you have to be a presiding officer sometimes, presiding officer. So I immediately volunteered. I said I would like to go to Abuj Marg. And it was a 5-day trek. And as you said, 11 million people get involved. The polling station deepest in Abuj Marg tract of Bastar, then you have to trek for 5 days and come back in about 3 or 4 days. And that's why, and people say ये जो वोट पड़ जाते हैं और उसके बाद गिनती देने में इतना टाइम क्यों लगता है, ये लोग भूल जाते हैं कि ऐसे भी काम होते हैं. But the tragic part was, I mean, and of course he said, नहीं, you want to run away from the electoral process, you'll be away for 10 days and तुम बाकी कुछ सीखना नहीं चाहते, तुम यहीं रहो, यहीं बनाएंगे तुमको presiding officer. But the gentleman who went as presiding officer, he came back in a cover. Cover in Bastar is वो जो क्योंकि cerebral malaria हो गया उसको presiding officer को, और वो उसकी लाश आई cerebral officer के अलावा. तो I always think of that Mr. Gupta कि गुप्ता जी आपकी जगह हो सकता है मेरा कलेक्टर हाँ कह देता तो शायद मैं गया होता. So what you are saying is right, sir. So what we'll do is the challenges of elections. I'll take you through to some of the questions which might be in the minds of many of us here. And the first one. Yeah, बिल्कुल. आपने जो बोला ना, इसी का एक क्वेश्चन जो मुझसे बहुत बार पूछा गया, बहुत से लोगों से बड़े हमारा 50% +1 वोट पे जीतना चाहिए, जो कितने लोग मार्जिन से जीते हैं. अरे भाई क्या है, जब पोलिंग पार्टी गई हुई है दूसरा इलेक्शन करा दो ना. दूसरे इलेक्शन अब पीपल फॉरगेट का अबुज मार्ग जहाँ पे इस तरह जान हथेली पे लेके सिक्योरिटी फोर्सेस को हमें सिक्योरिटी देनी पड़ती है, उनमें जाके एक महीने के बाद आप दूसरा इलेक्शन भी कर दीजिए. इज इट ए जोक? Which is why ये इस किस्म के जो लोग uninformed bright ideas हैं, they need to be dispelled because they don't know what goes behind. Another operation, second election is a full-fledged election and riskier than the first because we use surprise as a weapon. Second time वो सारा route सबको तो पता है, वो attack हो जाएंगे. मेरा पहला सवाल जो है, the first one is about a question which never allows itself to die in the minds of the voters and the politicians. It's about EVM. And now to add to the EVM, there is the VVPAT as well. So if elections, any election for that matter, is about authenticity, about the integrity of the election, and of course a level playing field on which we'll go a little later, what I want you to kindly dilate is that how do we move ahead with this? Because can't we put these controversies behind us? Number one. Number two, this entire question of VVPAT which has come in the minds of voters, and some thinking voters have this in mind, including me, that by adding one more layer of such protection,
are we really doing anything? Because we always have claimed, and this Election Commission of India has actually challenged, thrown an open challenge for anyone to come and come and try and show how these machines can be interfered with, and nobody went ahead. So how do we really dispel all these doubts? Time and again, these come up. And then, of course, because this time is short, I would also like you to kindly come up with what of electronic voting. Because that's another, because there's a lot of intelligence of Bhopal here. They would probably have this in mind कि घर बैठे क्यों ना हम वोट कर लें, जब आप कहते हैं कि हम लोग वोट करने नहीं जाते हैं। जी, देखिए मैंने ईवीएम पे तो मैंने बहुत लिखा है, बहुत बार बोला है कि ईवीएम आर टोटली डिपेंडेबल, हमें उसे बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए। और क्योंकि इसके बहुत सारे तो इनबिल्ट सिक्योरिटी चेक्स हैं, जो पूरा इस पर चैप्टर है टेक्नोलॉजी पे मेरी किताब में भी, कि किस तरह हम इसको शुरू से आखिर तक करते हैं। प्लस उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव कस्टोडियल सिक्योरिटी है कि कभी प्राइवेट हाथ में जाती नहीं है, और अगर किसी के हाथ में चली भी गई और किसी ने उसको छू दिया तो मशीन विल रिफ्यूज टू ऑपरेट। ये सारे इसमें इनबिल्ट चेक्स हैं। यही वजह है कि इतनी सारी मशीनें हमारी, कोई 18 लाख की सारी मशीनें हैं, प्राइवेट हाथ में इक्का दुक्का कर कोई पहुँच भी गई उससे कुछ होने वाला नहीं। ये कंट्रोवर्सी हर पॉलिटिकल पार्टी ने कभी न कभी इसके ऊपर उधम मचाई। बीजेपी ने 2009 में इस पर किताब लिखी थी, डेमोक्रेसी इन डेंजर, अडवाणी साहब का उस पर फॉरवर्ड था, और ये कौन नरसिम्हा राव, GVL नरसिम्हा राव, उन्होंने किताब लिखी थी। तो अब टेबल्स टर्न हो गई, अब कांग्रेस उसको बुरा भला कह रही है, दूसरी पार्टी कर रही है, और वो डिफेंड कर रहे हैं। फैक्ट है कि हमें एज वोटर्स हमें बिल्कुल चिंता न करनी चाहिए, मशीन बिल्कुल ठीक है, और ये कंट्रोवर्सी ख़त्म हो जानी चाहिए थी आफ्टर इट वाज क्लेम्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में ये सारी गई, सब चीज़ें रखी गई, और वीवीपैट शुरू कर दिया। वीवीपैट मैंने शुरू करा था 2011 में, हमने वीवीपैट अपने कंपनीज को कहा ये बनाओ। व्हाट इज वीवीपैट? वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, यानी एक पर्ची भी प्रिंट हो जाती है और वो एक डब्बे में बंद हो जाएगी, और जब चाहे हम उसको गिन लें, मशीन से कंपेयर कर लें। इसी इलेक्शन में 750 मशीनें की पर्चियाँ गिनी गई, 1 पर कॉन्स्टिट्यूएंसी, 750, एक भी तो मिसमैच नहीं हुआ। पिछले 4 साल में 800 साढ़े 800 मशीनों की पर्चियाँ गिनी जा चुकी हैं, एक भी तो मिसमैच नहीं हुआ। तो उसके बाद हमको क्या चाहिए? ये अब थोड़ी सी एक डिबेट अभी भी रह गई है कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम हर कॉन्स्टिट्यूंसी में से एक मशीन कुछ गिन देंगे। कांग्रेस पार्टी ने, अब कमलनाथ जी ने डिमांड किया था कि 30% होनी चाहिए, कोई 30%, 25%। मेरी उस वक्त OP रावत CEC से बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे बड़ा एक अच्छी रीअश्योरिंग बात कही थी। उन्होंने कहा कि सर, हमने कलकत्ता में जो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है उनसे पूछा है कि कितना सैंपल साइंटिफिक इनफ होगा जिसके से 99.9% लोगों को सेटिस्फैक्शन हो जाए। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, जो साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन बता दे कि 5% सैंपल, 15% सैंपल, जो उनको लगे बहुत। अभी तक हमको पता नहीं लगा उसने जवाब क्या दिया। इलेक्शन कमीशन इंसिस्ट कर रही है एक ही गिनेगी, हालांकि 750 मशीनों में अगर कोई निकला तो परहैप्स उनकी बात ठीक है, दिस सैंपल इज गुड इनफ। लेकिन अगर इसमें कॉम्प्रोमाइज होता हो कि 2%, 3%, 5%, मैंने तो बल्कि एक न्यूआंस्ड मेरा एक सजेशन भी है कि 2%, 5% तो आप ज़रूर करो, लेकिन उसके ऊपर जैसे क्रिकेट आप लोग काफ़ी लोग फॉलो करते होंगे कि आपको 2 वहाँ पे अपील अलाउड होती हैं कि उस पर एक्शन रिप्ले देख लीजिए कि रिव्यू सिस्टम, डिसीजन रिव्यू जो सिस्टम है, हर एक को 2 अलाउड है, और जिम्मेदारी से यूज़ कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने गैर जिम्मेदारी से यूज़ कर दिया, तीसरी अच्छा अपील जिसमें आप जीत सकते थे वो आपको। तो मैंने कहा कि टॉप 2 कैंडिडेट्स को 2-2 मशीनों पे उंगली रखने की इजाज़त दे दीजिए कि एक रैंडम में कुछ आए ना आए, जिस मशीन पे मुझे खास तौर पर शुभ है वो बता दीजिए कि ये गिन लो, कौन सी बड़ी बात है। तो अगर 5% हुआ तो 15 मशीनें नॉर्मली और 4 मशीनें ये, इससे कम से कम ये कंट्रोवर्सी जैसा आपने कहा कि किस तरह इसको ख़त्म करें, शायद इस तरह ख़त्म कर सकें। आपने सही आपने बिल्कुल सही फरमाया। जब कोई पार्टी इलेक्शन हार जाती है,
पिछली बार यूपी और पंजाब में भी ये हुआ कि यूपी में तो कह रहे थे कि सब गड़बड़ है और पंजाब में उसी समय कांग्रेस पार्टी के चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा नहीं नहीं यहाँ तो बिल्कुल ठीक है क्योंकि वो जीत के आए थे। तो बट आई सपोज इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, वी विल हैव टू। इसमें एक और भी मैं कहना चाहूँगा कि इतनी कंट्रोवर्सी चल रही थी कि बीजेपी और अमित शाह मोदी कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। 5-0 हारने के बाद अब तो भाई चुप हो जाओ, अभी भी बोले चले जाने के लिए ईवीएम में नहीं। अब वो क्या कह रहे हैं कि नहीं इन्होंने ऐसी होशियारी की क्रेडिबिलिटी के लिए ये हरवा दी अपने इलेक्शन, आप देखना जनरल इलेक्शन को जीत लेंगे। लिमिट ऑफ इमेजिनेशन। In fact, what you have said is also goes to the credit of the machinery which conducts the election. And by and large, our administrative machinery, as you very rightly pointed out, they have stood the test of time again and again. It's impossible for one returning officer or one collector or one election commission to be maintaining this kind of a quality. It involves thousands and thousands of people. But then what happens if now this is one part of the elections. The other part is when other stakeholders enter. So I'd like you to now like to take you into the other part, the wider domain as it were, where political parties are involved, where voters are involved, and you spoke of voter education, to which probably if given the time we can go to that question a little later. But the second uppermost things in minds of a lot of people, and especially of candidates and political parties, is about maintaining a level playing field between parties. इसको सभी लोग हम लोग जानते हैं, फिर भी ये थोड़ा सा एक दो वाक्यों में कि रूलिंग पार्टी के पास एडवांटेज नहीं होना चाहिए इलेक्शन के समय पे, क्योंकि वो तो अभी बांग्लादेश वगैरह में कोशिश की गई थी कि एक केयर टेकर गवर्नमेंट इलेक्शन कराए, वो भी उनके यहाँ एक बार होने के बाद दोबारा नहीं हो पाया। लेकिन हमारे देश में तो जो पार्टी पावर में रहती है वही उसी के समय में इलेक्शन होता है। तो इसीलिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इवॉल्व हुआ, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 60 के आसपास के दशक में केरल से चालू किया और अब वो सभी जगह फैल गया है, सब लोग हम उसको फॉलो करते हैं चाहे किसी भी तरह के इलेक्शंस हो। तो लेकिन एमसीसी का सबसे बड़ा चैलेंज तो आमतौर पर ये देखा गया है कि रूलिंग पार्टी होती है। लोग सोचते हैं कि ऑपोजिशन बड़ा चैलेंज है, कमिश्नरों के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तो रूलिंग पार्टी ज़्यादा चैलेंज होती है। तो इसके बारे में क्यों, हालांकि आपने कहा है कि आपने कोई जूसी एनेक्डोट्स नहीं दिए हैं, बट कुछ तो ऐसे वाक्य होंगे जो शायद एजुकेट करें लोगों को कि किस तरह से इलेक्शन मशीनरी इसको हैंडल करती है, जबकि वो लॉ नहीं है अपने आप में। तो पहली बात तो ये कि इस लेवल प्लेइंग फील्ड को मेंटेन करने के लिए क्या किया जा सकता है। लेकिन दूसरा, और उसका उल्लेख शायद आपके नए संस्करण में आपकी किताब के है कि अब ये जो कंटिन्यूस मोड ऑफ इलेक्शन चालू हो गया है, इलेक्शन कमीशंस का तो 21 दिन का रोल होता है, और अगर फेजेस ज़्यादा हुए तो जैसा हम लोग सब जानते हैं 30-40 दिन का पार्लियामेंट का इलेक्शन 2 महीने तक भी फैल जाता है, क्योंकि कई फेजेस में इलेक्शन होते हैं। लेकिन ये जो 1 साल पहले से जो तैयारियां होकर के पॉपुलिस्टिक मेजर्स उठाए जाते हैं और ये सोचा जाता है कि इनका प्रभाव इलेक्शन पे पड़ेगा, कई बार नहीं भी पड़ता, ऐसा भी होता है। तो इस बारे में क्या और सोच विकसित करने की ज़रूरत है, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को और क्या कैसे आगे बढ़ाएं, और ये पॉपुलिज्म का जो मामला पूरा दायरा विकसित होता जा रहा है, उसके बारे में हम लोग क्या सोच सकते हैं। आपने कई इश्यूज एक्चुअली इसमें रेज कर दिए, लेकिन मॉडल कोड पर ही हम करते हैं। मॉडल कोड पे भी बड़ी डिबेट चलती है कि मॉडल कोड की वजह से सारा एडमिनिस्ट्रेशन सब एक्टिविटी स्टैंड स्टिल हो जाती है। ये बहुत बड़ा झूठ और ये बहुत बड़ा एग्जैजरेशन है। ठीक है, बार बार इलेक्शन होगा, अब अगर कहीं बाई इलेक्शन की ज़रूरत होगी, मध्य प्रदेश में कोई वैकेंसी हो गई तो वो तो होगा, और फिर एक नागालैंड में हो गई तो नागालैंड में इलेक्शन हो रहा है तो आपको कुछ फ़र्क पड़ता है, आपके पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट में कुछ हो रहा है तो आपको फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है सिर्फ हम लोगों को, क्योंकि कहीं भी इलेक्शन हो हम तो हैं, और कुछ नेताओं को क्योंकि उन्होंने वो इलेक्शन ज़रूर जीतना है। इन दो के अलावा जनता को किसी को और किसी और ज़िले के एडमिनिस्ट्रेशन पे असर नहीं पड़ता। और मॉडल कोड में भी हमारे रजिस्टर्ड रूल बड़े क्लियर हैं कि कोई नई स्कीम आप अनाउंस नहीं करेंगे, और नई स्कीम जो वोटर को लुभाने के लिए, उनको लो बनाने के लिए होती है, वो आप नहीं अनाउंस करेंगे। पुरानी स्कीमें सब चलती रहेंगी, न उसी वक्त आप कोई ट्रांसफ़र ऐसा नहीं करेंगे ताकि अब इलेक्शन इनकम्बेंसी एडवांटेज उठा लें। तो नई स्कीम, क्या वजह है कि नेताओं को 4 साल 11 महीने दिमाग सोता रहता है, और हर ब्राइट आइडिया नई स्कीमों के इलेक्शन से 2 हफ्ते पहले आते हैं। आज भी जो एक डिबेट चल रही है यही चल रही है कि इतने लेट क्यों आया।
फैक्ट ये है कि हर साल हर इलेक्शन हर पार्टी हर इलेक्शन से पहले नए आइडिया देते हैं कि वोटर बेवकूफ बन जाए। वोटर अब होशियार हो गया, वो इनकी परवाह नहीं करता है क्योंकि उसे मालूम है कि ये सिर्फ वोट जीतने के लिए ये आइडिया तो आते ही करने के होते हैं। तो ये रेगुलर डिबेट है। आई डिडंट वांट टू कमेंट ऑन समथिंग व्हिच इज हैपनिंग करेंटली, बट द फैक्ट इज कि ये तो मैंने 5 साल पहले ये चीज़ किताब में लिखी हुई है। आज तो उससे सिर्फ एक साबित हो रहा है वो बात जो मैंने कहने की कोशिश की कि व्हाई इज इट दैट ऑल ब्राइट आइडियाज कम टू देयर माइंड ओनली बिफोर द इलेक्शन, उसको रोकने के लिए है। और उसमें भी अगर कोई नया आइडिया उनको आता है जो देश हित में है, बड़ा ज़रूरी है, तो हमसे पहले से पूछ लें। ये और हम इतने लिबरल हैं परशुराम जी, आप यकीन मानिएगा। टू गिव यू वन एग्जांपल, एक एमपी लैड स्कीम का आपने नाम सुना होगा। 2 करोड़ रुपए साल का एमपी इसको होता था, 5 हो गया। मैं सीईसी था, मेरे पास मैं अपने लॉन में टहल रहा, मेरे पास कैबिनेट सेक्रेटरी मिस्टर चंद्रशेखर थे, उनका फोन आया, ये कुरैशी ये फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर प्रणब मुखर्जी उस पर इसको 2 से 5 करोड़ करना चाहते हैं, तुम्हारे इलेक्शन 5 स्टेट में तमिलनाडु केरल वगैरह 5 जगह हो रहे हैं, तो बताओ क्या करें। तो घूमते घूमते चलते चलते मैंने कहा कि कितना खर्चा आएगा, 8,500 करोड़। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि देश हित का है, वाइडर कंट्री का मामला है, ऑल राइट, उनको नो प्रॉब्लम। 5 स्टेट में 1.5 महीने तक इम्प्लीमेंट नहीं कीजिएगा, उसके 1.5 महीने बाकी रेस्ट के लिए आज कर दीजिए। विद इन 10 मिनट्स आई गेस ऑन माई iPad आई गेट गूगल अलर्ट, ये जी उन्होंने प्रणब मुखर्जी ने एग्जैक्टली वो कन्वर्सेशन रिप्रोड्यूस करते हैं कि कुरैशी से कैबिनेट सेक्रेटरी ने बात कर ली, उसने अलाउ कर दिया, सिवाय इन 5 स्टेट। 8,500 करोड़ का प्रपोजल हम चलते चलते अप्रूव कर देते हैं, तो उसके बाद कहना कि इलेक्शन कमीशन आपको ऑब्स्ट्रक्ट करती है, काम नहीं करने देती। आई थिंक इससे ये बड़ी ज्यादती की बात है। थैंक यू। इनफैक्ट इससे एक कदम अब आगे और बढ़ते हुए जो एक और प्रश्न जो लोगों के मन में रहता है, जिसके बारे में आपकी किताब में भी काफ़ी जिक्र है, वो है इलेक्शन एक्सपेंसेस। और ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सारे और कमिश्नरों को भी खासी इसमें परेशानी होती है, इलेक्शन एक्सपेंसेस को कैसे मॉनिटर किया जाए। कैंडिडेट्स की संख्या बहुत होती है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वो कंटेस्टिंग, इट्स बिकम्स इम्पॉसिबल टू गो एंड मॉनिटर every single candidate for every little expenditure that he incurs. That's one part. The second part is that we still in our country, we still haven't really been able to regulate the expenditures incurred by political parties. So when we are talking of a level playing field, when some parties have a bigger advantage than others, how do we really look at this? And I would like to, before I request you to say, I would like to end my point by going back to what I was in a conference in Mumbai only a couple of months ago, held by the Maharashtra State Election Commission, in which the Chief Minister Sahab had come and the Finance Minister was there, and the Finance Minister publicly said in such a forum probably larger than this, that आप लोग हमें झूठ बोलने के लिए क्यों कंपेल करते हैं, भाई इसे खत्म करिए, इस इलेक्शन एक्सपेंसेस के सारे मसले को, ये आप लोग नहीं सुलझा सकते हैं और हम भी नहीं करेंगे, हम तो खर्चा करेंगे। The finance minister said, हम तो और because it's in public record, हम तो खर्चा करेंगे और आपसे आके हमें झूठ बोलना पड़ता है। तो इस पूरे इलेक्शन एक्सपेंसेस के मामले में और कमीशन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो इतना एक के बाद एक ऑब्जर्वर्स भेज रहा है, अपनी तरफ से पूरी कोशिशें कर रहा है, तो क्या इस बारे में कोई नई सोच विकसित करने की जरूरत है? जी, आपने बहुत इम्पोर्टेंट इशू को हाईलाइट किया है कि मैं समझता हूँ और मुझे ये कहने में कोई हेसिटेशन नहीं कि मनी पावर इज द ओनली अनसॉल्व प्रॉब्लम इन इंडिया इलेक्शन मैनेजमेंट। हालांकि एक बात था, मैं नहीं शुरू किया था, मैंने जब अपनी सीईसी बना 2010 में, तो अपनी इनॉग्रल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने अपने लिए 2 चैलेंजेस रखे थे कि मेरे 2 साल में मैंने इनको डील करना है। एक तो वोटर एपेथी, जिसको मैंने डील किया, एंड आई एम वेरी प्राउड टू से कि रिकॉर्ड टर्नआउट मिल रहा है। लास्ट जनरल इलेक्शन वाज द हाईएस्ट एवर एंड मोस्ट स्टेट्स आर हाईएस्ट एवर एंड वुमेन टर्नआउट, यूथ वगैरह। दूसरा था मनी पावर। वी हैड इनिशियल, so I had set up a voter education division for the first problem and an expenditure monitoring division for the second. वहाँ पे हम इनकम टैक्स सर्विस से CBDT से एक सर्विंग कमिश्नर को लेके आए और अपने DG बनाया, उन्होंने रूल बनाए। मिस्टर P.K. दास आजकल इंदौर में पोस्टेड है, वंडरफुल, वेरी ब्राइट यंग मैन। सो उन्होंने रूल बना के और उसके बाद से जो हमने पकड़ धकड़ शुरू की पैसों की,
पहले इलेक्शन में 70-80 करोड़, आज तक 2000 करोड़ के करीब पैसे पकड़ चुके। मैंने अपनी किताब में 40 मोडस ऑपरेंडी ऑफ मॉनेटरी फ्रॉड जो ये लोग करते हैं वो लिखे हैं। क्या कि मोडस बड़े इंजीनियस इनका है कि किस तरह पैसा जाता है, किस तरह छुप के जाता है। एम्बुलेंस में जाता है, अब एम्बुलेंस में जाता है पैसा, अगर हमने एम्बुलेंस पकड़ दी, उसमें पेशेंट मर गया या हो गया तो हम तो फंस जाएंगे। तो हमने कहा भाई एम्बुलेंस का पीछा करना, हॉस्पिटल तक जाना, जब वो मरीज को उतार मिले तब पकड़ लेना। हमने देखा कि एक शादी हो रही है कि वो उसमें एक शादी में 4000 का मेहमान है, ड्रिंक्स एंड चिकन सब चल वो उड़ रहा है। हमारा ऑब्जर्वर क्यूरियस था, वो गया कि दूल्हा दुल्हन को मुबारकबाद दे दें। उस शादी में न दूल्हा था न दुल्हन थी। अच्छा, अब लेकिन इतने होशियार है, हम समझें कि हम बड़े स्मार्ट है, हमने मोडस ऑपरेंडी पकड़ लिया। हमने उसके बाद सारे बैंक्वेट हॉल उन सब की बुकिंग पर चेकिंग करके वहाँ चेकिंग शुरू करा दी। बोगस वेडिंग अभी भी होगी, सारे मुंडन बर्थडे उन्हीं दिनों थे। बोगस वेडिंग अभी भी होगी, लेकिन एक किराए का दूल्हा दुल्हन खड़ा कर देंगे और उनके पास प्रिंटेड वेडिंग कार्ड भी होगा। तो अब लेकिन सबसे बड़ी जो इन्होंने मोडस ऑपरेंडी चेंज कर दिया कि अब सारे मनी ट्रांजैक्शन इलेक्शन में हमारे पिक्चर में आने से पहले हो चुकी है। पहले से गवर्नमेंट डेस्टिनेशन पे पैसा पहुंच गया। अब जो फिजिकल मूवमेंट ही नहीं है तो हम पकड़ेंगे क्या? तो ये इसलिए ये प्रॉब्लम है, हमें इसका कोई सोल्यूशन। सेकेंडली कि एक्सपेंडिचर की लिमिट कितनी, इस पर बड़ी डिबेट होती है कि साहब इस वक्त लोकसभा के लिए 70 लाख, दूसरे विधानसभा के 28 लाख, ये रैशनल नहीं है। अरे भाई रैशनल क्या है आप बता दो, उस पर कोई एग्रीमेंट नहीं है। सम पार्टी से कि जी 70 लाख तो बहुत है, सिर्फ अमीर आदमी लड़ सकता है इलेक्शन। दूसरा कहता है 70 लाख क्या है, इलेक्शन में तो 7 करोड़ खर्च होते हैं। इसका किसी के पास जवाब नहीं। लीगली तो एक लिमिट होनी चाहिए ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड हो सके, ताकि कोई आम गरीब आदमी भी इलेक्शन लड़ सके। लेकिन वो इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट हो रहा है। और आपने ठीक कहा, वाजपेयी जी ने एक दफा कहा था कि सारे एमएलए एमपी जब अपना रिटर्न भरते हैं तो वो झूठा रिटर्न भरते हैं और वो कह लेंगे सबकी पॉलिटिकल फाउंडेशन झूठ पे होती है, वाजपेयी जी ने कहा। लेकिन इसके बावजूद पॉलिटिकल विल इसमें नहीं है। पॉलिटिकल विल थी तो 3 दिन में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गई। वुमेन्स रिजर्वेशन की तो 25 साल से पेंडिंग है। इस मेजोरिटी के साथ वो भी हो जानी चाहिए थी। तो इसका इलाज तो पॉलिटिशियंस ही को अपने दिमाग लगा के कंसेंसस से निकालना पड़ेगा। थैंक यू। इनफैक्ट सर क्योंकि वक्त कम है, मेरे पास तो बहुत सवाल हैं, लेकिन वो मैं कभी और मौका ढूंढूंगा। पहले मैं इसलिए आपसे मेरा अनुरोध होगा कि अब हम हमारे ऑडियंस में बैठे साथियों से जो यहाँ सज्जन आए हैं, महिलाएं आई हैं, उनके सवालों को ले लें। और बहुत सारे हाथ उठते दिख रहे हैं। सबसे पहले मैंने ये लाल, कृपया अपना इंट्रोडक्शन दें और अपना सवाल पूछें। समय कम है, बहुत सवाल बचे। कमेंट ज़्यादा लंबा ना करें, कमेंट हम सुनेंगे। सर बाय सेल्फ दीप अहिरवार, मैं एक छोटे से विलेज से बिलोंग करता हूँ। तो मेरा सर क्वेश्चन है, जब इलेक्शन होते हैं, बिफोर वन डे इलेक्शन, जो पार्टी रहती हैं वो क्या करती है, जो विलेज में है वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते, इतने सक्षम नहीं होते, उनके लिए क्या किया जाए? जो पार्टी उनको थोड़ा बहुत अमाउंट देती है वो उनके लिए वोट कर देते हैं। तो एक रियल डेमोक्रेसी में क्या है? और दूसरा क्वेश्चन ये है सर कि आजकल जो एमएलए एमपी बनते हैं, वो जो विलेजेस में जो लोग रहते हैं उनका जो एक रिप्रेजेंटेटिव है वो तो सिलेक्ट ही नहीं कर पाते। मतलब कहने का सेंस है कि जो जिसके पास ज़्यादा अमाउंट होता है वो इलेक्शन के लिए, उसके लिए सीट वो टिकट मिल जाता है तो वो इलेक्शन लड़ने लगता है। लेकिन एक जो नॉर्मल इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन विलेजेस में रहती है उनके लिए तो रियल डेमोक्रेसी में उनका तो रिप्रेजेंटेटिव हो ही नहीं पाता सर। नहीं, आपके क्वेश्चन का ये तो कमेंट है और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि गरीब आदमी का तो अब स्कोप ही नहीं। इसीलिए आप देखेंगे इंडिपेंडेंट भी अब तो बोगस डमी कैंडिडेट होते, लेकिन जीत के कितने आते, इक्का दुक्का, वो भी पॉलिटिकल पार्टी के सीक्रेट सपोर्ट से आते हैं। अदरवाइज आम आदमी गरीब आदमी के लिए तो इंक्रीजिंगली इलेक्शन लड़ना मुश्किल होता है। सर दिस इज विवेक, काइंडली लेट्स फॉलो एन ऑर्डर। गुड, मैं सबको मौका देने की कोशिश करूंगा। वैसे ही सुना देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल होना चाहिए इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए? क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि होना चाहिए। बिल्कुल आप ठीक, इसके ऊपर आप बहुत ठीक कह रहे हैं। बल्कि मैंने इसमें अपने किताब में भी लिखा है, सुप्रीम कोर्ट को मैंने अपना गार्डियन एंजल बताया। सबसे ज़्यादा रिफॉर्म हमको अगर इलेक्शन में आए तो सुप्रीम कोर्ट से ही आए हैं। पॉलिटिशियन तो जिस चीज़ को की तरफ परवाह नहीं करते वो सुप्रीम, और सब क्या चीज़
जो एफिडेविट ये नेता लोग देते हैं जिसमें बताते हैं कि हमारे खिलाफ कितने क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है, वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। अपना फाइनेंशियल अकाउंट, अपने बीवी बच्चों का सारा जो हमको पता होता है, जिसमें हम डिबेट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। तो वीवी पैट का इशू सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। बल्कि एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अगर हो जाए तो बड़ा अच्छा हो। दुनिया की सबसे पावरफुल इलेक्शन कमीशन जो हमारी है, उसका अपॉइंटमेंट सिस्टम सबसे डिफेक्टिव है। गवर्नमेंट ऑफ द डे जिसको चाहे लगा दे। मैं भी उसका बेनिफिशियरी था, मुझे भी किसी सरकार ने लगाया, लेकिन कोशिश ये होती थी कि सबके के लिए न्यूट्रल और फेयर रहे। वो बड़ा मुश्किल काम होता है। अगर आप फेयर भी हैं लेकिन कोई उंगली उठा ही सकता है। कुरैशी कांग्रेस का पॉइंट ये जरूर सॉफ्ट रहा होगा। वो तो अगर मैंने लॉ मिनिस्टर ऑफ द लैंड और 3 मिनिस्टर को अगर नोटिस ना दिए होते, सेंच्योर नहीं किया होता, तो लोग यही कहते रहते। तो बड़ा प्रेशर हो जाता है। ओपी रावत पे प्रेशर था, इस पे दबाव पड़ता है कि कितने भी आप फेयर हैं, वो होता है कि गवर्नमेंट के फेवर कर रहा होगा। अरे भाई, हर चीज के लिए कोलिजियम है तो इस पे भी कोलिजियम बना दो। जजेस के लिए कोलिजियम है, CIC इसमें है। अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने साइन किया हुआ है हमारा अपॉइंटमेंट, कम से कम फिर वो उंगली नहीं उठा पाएंगे कि भाई तुम्ही ने तो चुना था, अब तुम कहते तो ये फलां पार्टी का है, बीजेपी का सपोर्टर है। तो इसलिए इस सिस्टम को ये सुप्रीम कोर्ट ही करेगी अब होपफुली, क्योंकि सरकार तो इसको टाले जा रही है। 20 साल का हमारा प्रपोजल है। हम बैकग्राउंड वाले जो कैंडिडेट्स आ जाते हैं उनका नहीं, उसके लिए हाँ, अगेन उसमें ये गया था सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट में अभी भी एक्चुअली ये पेंडिंग है। क्रिमिनल्स इन पॉलिटिक्स, हर लोग हमको गाली देते हैं, इलेक्शन कमीशन निकम्मी है, नालायक है, कुछ टूथलेस है, ये क्रिमिनल्स इतने आ जाते हैं। एक एमपी के तो इस वक्त 183 एमपी के खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं, और पिछली लोकसभा में 164 थे, 2004 में 124 थे। गिनती बढ़ रही है। आज इसको हम रोक नहीं पा रहे हैं तो लोग हमको ब्लेम करते हैं। दे डोंट रियलाइज कि डिस्क्वालिफिकेशन, कौन इलेक्शन लड़ सकता है कौन नहीं, ये लेजिस्लेशन से होता है। वो ही कर सकती है। लेजिस्लेशन पे मजबूर सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, और हम उम्मीद करते हैं कि किसी दिन आप जाइए PIL में प्लीज। Hello sir, I am Dr. Vinod Gupta. Hold on, sir, hold on. And the lady here. Namaskar, Assalamu alaikum. I am Kaniz Zara Razavi. I am a very simple non-fiction editor. I have lived in Bhopal for 32 years. I have voted. I moved from one side of the city to the other side of the city. And in my building we are only Muslims. I don't mean to say anything inappropriate. None of us are included in the election. None of us Are included in the election. And I went back to E7, Arera Colony, to find out how I can be transported. They said, where is your Aadhaar card? Here's my Aadhaar card. Where is your PAN card? Here's my PAN card. Where is your identification? Here's my identification. But nothing after that. Go here, go there, go everywhere around the world. But how do I vote again? Thank you. थैंक यू फॉर हाईलाइटिंग दिस। हमारी जो वीक अंडर बेली है वो इलेक्टोरल रोल्स ही है, और अब मैं उस पे हूँ, ट्विटर पे हूँ, रोज गाली खाता हूँ। इलेक्शन कमीशन उस पर नहीं आई है, जो बड़ी ज्यादती है, क्योंकि सीधी अगर वो गाली खाएं और आप जैसे लोगों की प्रॉब्लम का समाधान करें, इलाज करें, उनका काम है। आई एम हैप्पी टू टेल यू कि मेरी रिक्वेस्ट पे कल मैं CEC और जो दूसरे सर्विंग मेंबर हैं के पास मीटिंग करने जा रहा हूँ। लंच पे मैंने बुलाया था, उन्होंने मुझे बुला लिया। अच्छा है, मैं शायद वो रिफॉर्म कर दें। खाना तो खाई लूँगा, लेकिन जो आपने बताया ना कि इस सिस्टम को कैसे इम्प्रूव करें, क्योंकि ये शिकायतें हर तरफ से बार बार आती हैं। तो इसको जब तक, और इसका इलाज है मेरे पास है, जो मैं उनको सेल करने जा रहा हूँ। मेरे पास इलाज क्या है कि 10 लाख हमने बूथ लेवल अफसर अपॉइंट किए थे पिछले 8 साल पहले, और ये बूथ लेवल अफसर गाँव में, मोहल्ले में, आपके मोहल्ले की स्कूल टीचर है, स्कूल या पटवारी है, या कोई है जिसको आप जानते हैं, जानना चाहिए। आप स्कीम सिंपल है कि आप जाइए, BLO का दरवाजा खटखटाइए कि देखिए मेरा नाम फला जगह से फला जगह चेंज हो गया, इसको ठीक कर दो। वो आपको फॉर्म 7 देगी जो करेक्शन का है, वो आप उसमें भर के दे दीजिए। तो BLOs की 10 लाख के BLOs की लिस्ट तो हम अखबारों में छाप नहीं सकते, नेट पे बेशक आ सकती है। तो मैंने एक स्कीम बनाई थी जो मैं उनको कल सजेस्ट करने जा रहा हूँ कि हम नो योर BLO कैंपेन चलाएं।
For all your electoral roll problem, you should know your BLO. And how would you know your BLO? Go to your nearest post office or bank branch or ATM. 6 लाख के करीब पोस्ट ऑफिस है, ये तीनों कैटेगरीज के आउटलेट्स हैं, 6 लाख और 10 लाख के करीब पोलिंग स्टेशन है। तो ऑन एवरेज हर एटीएम पे 2 लोगों का एक पोस्टर लगा होगा कि आपके मोहल्ले का जो BLO है ये है, इसका ये फोन नंबर है, आप चले जाइए। तो मैंने बल्कि बैंकिंग सेक्रेटरी, पोस्टल सेक्रेटरी को बुला के उनसे मीटिंग दे हैड ऑल एग्री। बल्कि उन्होंने कहा, बैंकिंग सेक्रेटरी ने कहा आप हमको क्या पैसा देंगे? हमने कहा जी 5-10 लाख रुपए के पोस्टर छपा के। उन्होंने कहा जी आप क्या देंगे, हम आपको छाप लेंगे और आपको उल्टा दे देते हैं पैसा, हम कर लेंगे। बाद में ये क्यों नहीं चला, क्या नहीं चला, ये हमारे ब्यूरोक्रेसी के साइड की बातें हैं तो होती रहती हैं। लेकिन उसको अब चला दो, क्योंकि अदरवाइज इलेक्शन कमीशन की बदनामी होती रहेगी। मुझे मेरी इस किताब पे मजाक उड़ जाता है कई बार, तो इसीलिए एक और इलेक्शन कमीशन की अपील होती है बार बार, नो योर BLO, सॉरी हैव यू चेक योर रोल, चेक योर रोल। होता क्या है, लोग सिर्फ इलेक्शन के दिन जब पहुंचते हैं तो उनका आपका नाम मिसिंग होता है। मैंने एक कंप्लीट करूँगा, एनेक्डोट ही है उसमें। मेरी इस किताब का लॉन्च बॉम्बे में हो रहा था, सुचेता दलाल कर रही थी। उन्होंने मुझको कहा कि कुरैशी आप दीपक पारेख को इन्वाइट कर सकते हो चेयरमैन के लिए। तो मुझे याद आया, मैंने उनको टीवी पे देखा था, वो जो वोट देने गए थे उनका नाम तो मिसिंग था। अब वो आके चेयर करेंगे तो मुझे एम्बैरस करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि वो मेधा पाटकर को भी बुला सकते हो। मैंने कहा मेधा पाटकर वो तो कैंडिडेट थी, उनको भी बुला लो भाई। फिर उन्होंने अपने ट्विटर पे ये एडवर्टाइज किया कि कुरैशी इज कमिंग टू बॉम्बे फॉर द लॉन्च ऑफ हिज बुक, ऑल दोज ऑफ यू जिनके नाम मिसिंग थे वोटर से, 400 में से 300 लोग वो थे जिनके नाम मिसिंग थे और वो कोर्ट में चले गए। मुझे अपनी तैयारी करनी थी, मैंने CEO से पूछा कि यार तो बता तो तुम PIL कोर्ट में हुआ है, उसको आपने जवाब क्या दिया? फिर मैंने कहा आपने कोशिश, उन्होंने मुझको 4 न्यूज़पेपर दिखाए बार बार 4 लैंग्वेजेस में, उर्दू, हिंदी, मराठी एंड अंग्रेजी। चेक योर रोल, चेक योर रोल, प्लीज चेक योर रोल, हैव यू चेक योर रोल। मैंने उसी से शुरू किया। मैंने कहा साहब ये 6 महीने से एडवर्टाइजमेंट चौक रहे थे, डिड यू चेक योर रोल? किसी ने दे दिया, सबको सांप चुप गया। दीपक पारेख ने कहा आई एम वेरी सॉरी कि मैंने ये किया, तो मेरी गलती थी, आई हैड नॉट चेक्ड माय रोल। इनफैक्ट ये एक कारण है इस कारण जिसके लिए हर साल वोटर लिस्ट का प्रकाशन होता है। वोटरों को चाहिए कि आप अपने, भले चुनाव हो ना हो, हमें चुनाव के पहले ही केवल वोटर लिस्ट की आती है। Yes, you. We'll have time only for, I'm sorry, but only for 2 more questions. Sorry, sir, and not- we have to end the session. So this was, so kindly bear. We are completely out of time. आपका enthusiasm response तो बहुत जबरदस्त। Yes, sir. सर मेरे 2-3 बहुत छोटे छोटे सवाल हैं। एक तो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर आपका क्या कमेंट है? दूसरा पॉइंट नोटा को लेकर, अभी रिसेंटली हरियाणा या महाराष्ट्र में थोड़ा कंफ्यूज है ना, मतलब शायद स्टेट से, उसमें ये हुआ है कि अगर जीतने वाले का मतलब जो मार्जिन है अगर वो नोटा का ज्यादा है तो फिर आप इलेक्शंस उसमें रद्द कर दिया जाएगा। ऐसा किसी स्टेट इलेक्शन कमीशन ने किया है। तो इसके बारे में, क्योंकि अभी मध्य प्रदेश में जो विधानसभा इलेक्शंस हुए हैं उसमें करीब 5 लाख से ज्यादा नोटा वोट पड़े हैं, तो इस दोनों में मतलब आपका क्या कहना है? देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में अगेन मैंने कई बार लिखा है, इसमें भी लिखा है जो एडिशनल चैप्टर में, किताब ये मैं आपको बेच के ही रहूँगा, बार बार हवाला दे रहा हूँ उसका। तो इसमें भी मैंने लिखा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड इज अ बैड आइडिया। और बल्कि फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच बड़ी अच्छी शुरू हुई थी कि 70 साल से हम इलेक्टोरल फंड के, पॉलिटिकल फंड को की ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं, लेकिन फेल हो गए हैं। इसके बिना फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो ही नहीं सकता है। तो हमने सोचा कि शायद अब ये फेयरनेस की को बात लेने जा रहे हैं, इसलिए हम इलेक्टोरल बॉन्ड शुरू कर रहे हैं। उसका मतलब क्या होगा, उससे पहले तक 20,000 रुपए के ऊपर की हर डोनेशन हमको रिपोर्ट किया जाता था, अब करोड़ों रुपए का डोनेशन हमको नहीं पता किसने किसको दिया। ये दिस इज ट्रांसपेरेंसी। दूसरी चीज जो की कि 7.5% से ज्यादा कोई कंपनी अपना प्रॉफिट डोनेट नहीं कर सकती थी, वो लिमिट हटा दी। यानी कंपनियां अपना 100% प्रॉफिट पॉलिटिक्स में चलाने के लिए, तो अब सारे जो क्रोनी कैपिटलिज्म की हम बात करते थे उसको लीगलाइज और इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया एज अ रिफॉर्म फॉर ट्रांसपेरेंसी। दैट इज माय व्यू। दूसरा आपने नोटा, ये जो किसी स्टेट ने कहा, मैं भी आई वाज क्वाइट सरप्राइज कि कैसे कर दिया। वो जो उन्होंने मेरे हिसाब से जो उन्होंने किया वो इलीगल है। लॉ ये है कि अगर 100 लोग वोट देते हैं और उनमें से 99 नोटा है और 1 मिस्टर परशुराम है,
तो हमारे लिए परशुराम इज द विनर बिकॉज दैट इज द ओनली वैलिड वोट, अदर्स आर ब्लैंक वोट्स। अब ब्लैंक वोट को आप कैंडिडेट तो नहीं बना सकते कि जी मिस्टर ब्लैंक विल बी द एमएलए। तो ये उन्होंने कर तो दिया, लेकिन अभी तक वो चैलेंज नहीं हुआ। आई एम सरप्राइज। होगा। आपके गृह राज्य हरियाणा नहीं किया है सर ये, वही चैलेंज होगा। एंड महाराष्ट्र the very last question, I'm terribly sorry about this, but that gentleman there at the back had raised his hand very much early. Someone, yes sir. Yeah, I'm sorry about this, but you'll have to, we probably will have to have another session with Mr. Qureshi very soon. मेरा सवाल तो रोली ने किया, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ एडीआर का भी थोड़ा सा क्रोज है इस पूरे उसमें। अरुण गुड्डू साहब ने जो सवाल किया वो एडीआर के मेंबर हैं, रोली हैं, हम 5-7 लोग यहाँ पर हैं, तो एडीआर का जिक्र कर दें। नोटा पर मैं पूछना चाहता था, रोली के सवाल का आपने जवाब दिया। थैंक यू। ADR का अच्छा, थैंक यू फॉर पॉइंटिंग आउट। ADR इज अ ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन। वो जिन जो बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी, रिट पे आई थी, उन्हीं के PIL पे आई थी, और रिफॉर्म के लिए जितना कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी और जो एफिडेविट होते हैं उसका एनालिसिस, क्योंकि हम इमीडिएटली जैसे अपनी वेबसाइट पे डालते हैं और शेयर करते हैं, ADR उसका एनालिसिस करके आप लोगों तक पहुंचाता है कि भाई देखो ये आदमी पॉपर था, अब करोड़पति हो गया, बोलो इसको वोट देना चाहते हो। तो ADR का जो एक रोल है, टोटली सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, इज एनॉर्मस एंड क्रेडिटेबल। जो प्रॉमिस करेंगे किताब खरीदेंगे वो कर सकते हैं। 50 क्वेश्चन अलाउड। Thank you so much. Thank you for watching the session from BLF 2019. Kindly subscribe to our channel for more such videos.